Hello children, as you know that we have completed 4 chapters in science and today we are going to start chapter number 5, that is coal and petroleum. Children, you can open your books also, you can refer your books. Here is the explanation goes. We use various materials for our basic needs. हम अपनी basic needs के लिए बहुत अलग अलग तरह के materials को use करते हैं. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. So here in activity 5.1 you are given with a table in which you can write natural substances and man-made substances. ये आपको activity खुद complete करनी है. इस टेबल में आप fill कर सकते हैं what are the names of some natural substances and what are man-made substances or materials. If in the light of availability of various resources in nature, we divide natural resources into two main classes or kinds. What are they? First is inexhaustible natural resources. As the name itself indicates, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight, air, etc. And opposite are exhaustible natural resources, and the amount of these natural resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. For example, forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. Children, here is activity 5.2. इसको आप रीड करेंगे, इसको आप खुद करने की कोशिश करेंगे. इट्स अ वेरी फनी एंड एन्जॉयबल एक्टिविटी. इसमें आपको अपने कुछ फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. ट्राई टू डू दैट एक्टिविटी. We come to the next part. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. इसमें इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं जो कि एग्जॉस्टिबल हैं एंड दीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फॉसिल्स. ये फॉसिल्स से हमें मिलते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. द फर्स्ट फॉसिल फ्यूल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोल. कोल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं. इट इज़ हार्ड एज स्टोन, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड द फ्यूल इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड. अर्लियर इट वाज यूज्ड टू रन द इंजन्स ऑल्सो टू प्रोड्यूस स्टीम. एंड व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ कोल? कोल कैसे बना? ये बहुत पुरानी बात है. 300 million years ago the earth had dense forest in low-lying wetland areas. जो पहले के फॉरेस्ट हुआ करते थे वो फ्लड आने की वजह से डंप हो गए और नीचे डूबते गए. एंड ड्यू टू एज दे सैंक डीपर एंड डीपर they experienced high pressure and high temperature and slowly, very slowly they got converted into coal. और कार्बनाइजेशन रिएक्शन इसमें हुआ. कार्बन एक जगह डिपॉजिट होता रहा और इससे फिर कोल बना. दैट इज़ कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. नाउ चिल्ड्रन, कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स. कोक, कोल टार एंड कोल गैस. व्हाट इज़ कोक? कोक जो है इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन और ये स्टील और कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है. कोल टार ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है, बहुत थिक लिक्विड है जिसका कि अनप्लीजेंट स्मेल होता है. कोल गैस एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये गैस है और जब कोल को बनाने की प्रोसेस होती है उस समय ये हमें मिलता है कोल गैस. So this is the first section of our chapter, that is coal. Now we come to the second, that is petroleum. You know the uses of petroleum. automobiles में cycles, scooters, motorcycles, scooters, car, इन सब में यूज़ होता है. और जो heavy motor vehicles हैं उसमें डीजल यूज़ होता है. और पेट्रोल और डीजल both are obtained from petroleum. So what is petroleum? Petroleum and how petroleum was formed? Petroleum was formed from the organisms living in the sea.
और जैसे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी, दे गॉट बरीड, दे गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स चिल्ड्रन, and due to absence of air, high temperature and high pressure, it got converted into petroleum and natural gas. अब पेट्रोलियम जो है वो यूज़ करने के पहले उसको रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा. तो इसको रिफाइन करने की जो प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी, and here is a table children in which various constituent of petroleum has been shown here. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन एट्सेट्रा, और उनके यूजेस भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं. यू हैव टू रीड ऑल द यूजेस एंड यू हैव टू थिंक ओवर वेदर how these are utilized, how these products or constituents are utilized. Okay children, now we come to the natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas को हम पाइप के थ्रू भेज सकते हैं. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. CNG का आपने नाम सुना होगा. CNG के जो हैं व्हीकल्स भी चलते हैं और CNG की पाइपलाइंस भी आजकल हैं, जैसे वडोदरा में है, दिल्ली में है और कुछ और प्लेसेस में भी हैं, जिससे कि पाइपलाइंस के थ्रू गैस को सप्लाई किया जा सकता है. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemical and fertilizers. बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र को नेचुरल गैस की हेल्प से बनाया जाता है. हमारे कंट्री में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ कहाँ मिलती है, उसके कुछ स्पॉट्स हैं लाइक त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. So children, these are the three resources we have discussed: coal, petroleum and natural gas. Now children, these natural resources are limited, okay, because हमने प्रोसेस देखा है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म और प्लांट से बने हैं जो कि काफ़ी साल बाद बने हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स. तो ऑब्वियसली हमें इनका यूज़ जो है वो जुडिशियसली करना है, और चूँकि इनके बर्निंग से एयर पोल्यूशन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, इसीलिए हमें इनका यूज़ अच्छे से करना चाहिए, एनवायरनमेंट को देखते हुए करना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हैं कि पेट्रोल और डीजल को हम कैसे सेव कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ensure correct tire pressure, ensure regular maintenance of the vehicle. Okay children, so the chapter is about coal, petroleum and natural gas. इसके बारे में यहाँ पे कुछ समरी भी है. यू कैन रीड द समरी चिल्ड्रन, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द की वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर itself, that is coal, coal gas, coal tar, coke, fossil fuel, natural gas, petroleum refinery. So you have to read the chapter again and go through the explanation children. Read it thoroughly and you will be able to find out and understand the keywords of the chapter. Okay children? Thank you so much.